Hello and welcome all of you. You're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. From class 12th accountancy in the chapter of death of a partner, this is our 6th lecture video, and today we'll be studying the payment method, payment mechanism to the deceased partner's executor and the preparation of deceased partner's capital account. Let us start with the revision part, that is whenever we get a question of death of a partner, these are the fixed 7 adjustments we need to make, that is calculation of new profit sharing ratio including gaining ratio, accounting treatment of goodwill, revaluation of assets and liabilities, distribution of accumulated profits, losses and reserves, calculation and additional adjustment, calculation of deceased partner's share of profit from the date of last balance sheet till the date of death. All these adjustments have already been discussed in our previous video. If you have not watched that, you can watch it from my YouTube channel. The link is given in the description. Today we'll be dealing with the 6th adjustment, that is payment to the executor of deceased partner. Let us have a caution for this. Babita, Chetan and David are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1:1 respectively. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर चाहें तो, या फिर कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज जब मैं सॉल्यूशन करवाऊँ तो क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए. सो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 एंड द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31st March एवरी ईयर. चेतन डाइड ऑन 30th September. 31st March की को इनका क्लोज होता है, 30th September को डेथ हुई है. इसका मतलब जितना भी कैलकुलेशन होगा चेतन का वो होगा 6 months के लिए. लास्ट सेंटेंस में हम आ जाते हैं, prepare Chetan's capital account to be presented to his executor. So we need not to prepare any revaluation account, other partners capital account and the balance sheet. We have just been asked to present and prepare the Chetan's capital account. So let us start following the same sequence. सबसे पहले हम चेतन्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और चेतन्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, टू मेंशन द टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. देखिए आपको क्वेश्चन में दोबारा से आप पढ़ सकते हैं. देयर वाज अ बैलेंस ऑफ ₹1,25,000 इन चेतन्स कैपिटल अकाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है बाय, यहाँ पे बाय आएगा, सॉरी आप इसको थोड़ा सा करेक्शन करके पढ़ें. हेयर इट विल बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹1,25,000. सबसे पहला काम, दैट इज़ इन द चेतन्स कैपिटल अकाउंट मेंशन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल. आफ्टर दैट रीड द फर्स्ट एडजस्टमेंट. Point number A, interest on capital will be calculated at the rate of 6% per annum. So let us start calculating the interest on capital at the rate of 6% per annum. Chetan died on 30th September, we all know. So for 6 months we have to calculate it. Interest on capital equal to capital multiply rate, that is 6% given in the question, multiply number of months, that is 6/12. 6 months के लिए calculation करना है. So we have got ₹3750. This will be mentioned in the चेतन्स कैपिटल अकाउंट. ओपनिंग बैलेंस हमने लिखी दिया था 1,25,000 एंड अगेन बाय इंटरेस्ट इन कैपिटल 3,750. लेट अस मूव फर्दर. पॉइंट नंबर बी, द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शैल बी पेड ₹24,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल. एज अ शेयर ऑफ गुडविल उसे ₹24,000 हमें देना है. और आप लोगों को याद होगा अच्छी तरह से, जब भी हम गुडविल देते हैं डिसीज पार्टनर किसी पार्टनर को, तो वो कहाँ से देते हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट से देंगे ₹24,000. सो लेट अस कैलकुलेट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. दिस इज अ जनरल एंट्री आई हैव पास्ड इन द गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिकॉज इट इज़ अ एंट्री which is known as adjustment entry. Gaining partners capital account added to sacrificing partners capital account. अब इस क्वेश्चन में ये तो दिया ही नहीं है कि कौन गेनिंग होगा, कौन सेक्रीफाइसिंग होगा, क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा. तो हम ऐसी सिचुएशंस में क्या सपोज करके चलते हैं कि जो डिसीज्ड पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग है और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं दे आर गोइंग टू गेन द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन विच रेशियो, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओनली. तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में देखिए आप कितने गिवन है. फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ें. बबीता, चेतन एंड डेविड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1. अब इसमें से चेतन की डेथ हो जाती है, जो बीच वाला पार्टनर है उसको अगर हम हटा दें तो हमारा गेनिंग रेशियो कितना बच जाता है, 2:1. सो the share of goodwill of Chetan 24,000 have been divided among Babita and David in their gaining ratio, that is 2:1. और इसकी लेजर पोस्टिंग हमने चेतन्स कैपिटल अकाउंट में की है
that is by Babita's capital account and by David's capital account rupees 16,000 and rupees 88,000 respectively. कोई कन्फ्यूजन? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, उसके बाद में इंटरेस्ट एंड कैपिटल लिख दिया, अब गुडविल के लिए हमने पॉइंट लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास में इन्फॉर्मेशन दे रखी है पॉइंट नंबर सी, हिज शेयर ऑफ रिजर्व फंड रुपीज़ 12,000 शैल बी पेड टू हिज एग्जीक्यूटर। तो ठीक है, बाय रिजर्व फंड रुपीज़ 12,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही, चेतन कैपिटल अकाउंट में हमने लिख दिया बाय रिजर्व फंड। लेट अस कम टू पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी क्या कहता है? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड। आप लोगों को याद होगा अच्छी तरह से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था। दिस इज प्रोवाइडेड टू द डिसीज्ड पार्टनर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। पहले पढ़ लें कैसे कैलकुलेट करना है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, टर्नओवर बेसिस पे कैलकुलेट करना है। इट इज़ ऑल्सो स्पेसिफाइड दैट द सेल ड्यूरिंग 2011-12 दैट इज़ प्रीवियस ईयर की जो सेल है वो 4 लाख की है। द सेल फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर 2012 और करंट ईयर के 6 मंथ्स की सेल जो है 1,20,000 है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 वॉज रुपीज़ 2 लाख। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो है वो 2 लाख है। सो चेतन डाइड ऑन 30 सितंबर, जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो 6 मंथ्स का ही करना है। पहली बात, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई 100। लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख का, लास्ट ईयर की सेल हमें गिवन है क्वेश्चन में 4 लाख की। सो 2 लाख अपॉन 4 लाख मल्टीप्लाई 100 गिव्स यू 50% प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? जो हमें क्वेश्चन में करंट ईयर की सेल्स गिवन है, देखिए एक बार दोबारा से पॉइंट नंबर डी में लिखा हुआ है, द सेल फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू 30 सितंबर 2012 वर रुपीज़ 1,20,000। 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर जिस डेट को उसकी डेथ हुई तब तक की सेल्स 1,20,000 है। सो 1,20,000 मल्टीप्लाई 50% एंड मल्टीप्लाई शेयर ऑफ चेतन 1/4, तो हमारे पास में शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया 15,000 का। जो भी उस पर्टिकुलर पीरियड की सेल्स है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से और फिर उसमें कैलकुलेट कर लीजिए जो डिसीज्ड पार्टनर का शेयर है उससे। तो यहाँ पे हमारे पास में 15,000, दिस 15,000 विल बी गिवन टू द पार्टनर बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सारी चीज़ें सारे एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। फाइनली इसका जो टोटल होगा दिस विल बी ट्रांसफ़र टू चेतन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। हम ना तो लिखेंगे टू कैश बिकॉज ये तो पार्टनर की डेथ हो चुकी है, इसको हम पेमेंट कर नहीं सकते, ना ही हम लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन बिकॉज जब पार्टनर की डेथ होगी तो उसका कैरिड डाउन भी नहीं रह सकता। तो फाइनली डेथ ऑफ अ पार्टनर की सिचुएशन में जो भी फाइनल पेमेंट बन रहा होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, और फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाके हम उसको पेमेंट कर सकते हैं। सो दिस वॉज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट टू द डिसीज्ड पार्टनर। हमने जो टोटल बन रहा था 1,79,750 उसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया चेतन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ध्यान क्या रखना है, आपके माइंड में फिक्स 7 एडजस्टमेंट ये रहने चाहिए। इसको फॉलो करते हुए अगर आप करेंगे तो कभी कोई गलती नहीं होगी। फॉर ऑल द लेटेस्ट वीडियोज़ ऑफ क्लास 12th अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स सब्सक्राइब to the K Commerce Academy. Thank you.